15টাকৈ বৃহৎ উপহাৰ আগবঢ়াইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে একেলগে 5 লাখতকৈও অধিক লোকে লাভ কৰিছে ঘৰ সমান্তৰালকৈ কেইবাটাও বিশেষ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে কি প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰিছে লৈ আহিছো তাৰ সবিশেষ অসমবাসীক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 15টাকৈ বৃহৎ উপহাৰ ৰাজ্যবাসীলৈ এই বৃহৎ উপহাৰ আগবঢ়াইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু আজি একেদিনাই 5,55,555 গৰাকী লোকে লাভ কৰিলে ঘৰ দেশৰ সৰ্বপ্ৰথম একেলগে 5 লাখ লোকে ঘৰ লাভ কৰিলে প্ৰতিটো ঘৰ উৎসৰ্গ কৰা হৈছে মহিলাৰ নামত দেশৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাসকলৰ নামত যিসকলে এই ঘৰ লাভ কৰিছে প্ৰতিগৰাকী মহিলাসকলৰ নামত এই ঘৰ উৎসৰ্গ কৰা হৈছে ঘৰৰ অধিপতি হ'ব এতিয়া মহিলা যেহেতু 5,55,555টা ঘৰ লাভ কৰা হৈছে আৰু যোৰহাটৰ হুলুঙাপাৰত উন্মোচন কৰা হৈছে মহাবীৰ লাচিতৰ বিশাল প্ৰতিমূৰ্তি লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম জয়ন্তী উদযাপন কৰা হৈছিল দিল্লীত মহা ধুমধামেৰে উদযাপন কৰা হৈছিল লাচিত দিৱস এই বছৰতে উদযাপন হ'ব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সোণালী জয়ন্তী ৰাজ্যবাসীৰ বাবে ভাল খবৰ তিনিচুকীয়াৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতাল উন্মোচন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শিৱসাগৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে 300 কোটি ব্যয় সাপেক্ষে পেডিয়াট্ৰিক এণ্ড এডাল্ট হেমাটলিমোফিডৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছে বৰাউনীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ গেছ পাইপ লাইনৰো উদ্ঘাটন কৰা হৈছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই বিশেষ উপহাৰ আগবঢ়াইছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে ডিগবৈ শোধনাগাৰ বৰ্ধিতকৰণৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ দ্বাৰা ধূপধাৰাৰ পৰা ছয়গাঁৱলৈ আৰু নিউ বঙাইগাঁৱৰ পৰা সৰভোগলৈ দ্বৈত ৰেল লাইনৰো উন্মোচন কৰা হৈছে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমলৈ অহা প্ৰধানমন্ত্ৰী এই বৃহৎ উপহাৰ আগবঢ়ায় ৰাজ্যবাসীৰ বাবে আৰু যেহেতু দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমলৈ আহিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু আজি অসমবাসীৰ বাবে এই কেইবাটাও বৃহৎ উপহাৰ আগবঢ়াইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা দুটা নহয় 15টাকৈ বৃহৎ উপহাৰ আগবঢ়াইছে কেইবাটাও প্ৰকল্প উন্মোচন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে নিশ্চয়কৈ ভাল খবৰ যে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমলৈ অহা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইদৰে বৃহৎ উপহাৰ লৈ আহিছে অসমবাসীৰ বাবে আৰু আজিৰ এই দিনটোত 5,55,555 গৰাকী লোকে ঘৰ লাভ কৰিছে যিসকল ঘৰ লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত যিসকলে আবেদন কৰিছিল সেই সকল লোকে আজিৰ দিনটোত ঘৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু একেলগে 5,55,555 গৰাকী লোকে লাভ কৰিছে ঘৰ আৰু এয়া দেশৰ সৰ্বপ্ৰথম একেলগে 5 লাখতকৈ অধিক লোকে ঘৰ লাভ কৰিছে যেহেতু ৰাজ্যত 5 লাখতকৈও অধিক লোকে একেলগে ঘৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত লাভ কৰিছে এই ঘৰ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘৰ প্ৰদান কৰিছে আজি ৰাজ্যৰ লাখ লাখ লোকক আৰু এই প্ৰতিটো ঘৰ মহিলাসকলৰ নামত উৎসৰ্গা কৰা হৈছে এতিয়াৰে পৰা মহিলাসকল ঘৰৰ অধিপতি হৈ পৰিব যেহেতু 5,55,555 লোকে ঘৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই 5,55,555টা যি ঘৰ এই প্ৰতিটো ঘৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ নামত উৎসৰ্গা কৰা হৈছে অৰ্থাৎ 5 লাখতকৈ অধিক এই ঘৰৰ এতিয়া অধিপতি হৈ পৰিব মহিলাসকল সমান্তৰালকৈ যোৰহাটৰ হুলুঙাপাৰতো উন্মোচন কৰা হৈছে মহাবীৰ লাচিতৰ বিশাল প্ৰতিমূৰ্তি যেহেতু এইবাৰ লাচিত বৰফুকনৰ যি জন্ম জয়ন্তী সেয়া দিল্লীত উদযাপন কৰা হৈছিল আৰু ধুমধামেৰে মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম জয়ন্তী দিল্লীত উদযাপন কৰা হৈছিল বা লাচিত দিৱস উদযাপন কৰা হৈছিল তেনেস্থলত এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজেই যোৰহাটৰ হুলুঙাপাৰত মহাবীৰ লাচিতৰ বিশাল প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিছে আৰু এয়াই নহয় এই বছৰত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সোণালী জয়ন্তীও উদযাপন কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে নিশ্চয়কৈ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ যিহেতু মহাবীৰ লাচিতৰ বিশাল প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লাচিত দিৱস দিল্লীত উদযাপন কৰা হৈছিল আৰু ধুমধামেৰে সমগ্ৰ দেশে লাগি চোৱাকৈ উদযাপন কৰা হৈছিল লাচিত দিৱস আৰু সেই লাচিত দিৱস উদযাপনৰ পিছত এইবাৰ মহাবীৰ লাচিতৰ যি বিশাল প্ৰতিমূৰ্তি এই বিশাল প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যোৰহাটৰ হুলুঙাপাৰত উন্মোচন কৰা হৈছে এই বিশাল প্ৰতিমূৰ্তি আৰু সমান্তৰালকৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সোণালী জয়ন্তীও পালন কৰা হ'ব আৰু এই বছৰতে উদযাপন কৰা হ'ব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সোণালী জয়ন্তী
সমান্তৰালকৈ তিনিচুকীয়াৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালো উন্মোচন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তিনিচুকীয়াবাসীৰ বাবে নিশ্চয়কৈ ভাল খবৰ যে তিনিচুকীয়াৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতাল উন্মোচন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। শিৱসাগৰৰ বাবে ভাল খবৰ আছে, কিয়নো শিৱসাগৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 300 কোটি ব্যয় সাপেক্ষে পেডিয়াট্ৰিক এণ্ড এডাল্ট হেমাটলিমোফিডৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইয়াৰ উপৰিও বাৰাউনীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ গেছ পাইপলাইনৰো উদ্ঘাটন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ডিগবৈ শোধনাগাৰ বৰ্ধিতকৰণৰ বাবে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছে। নিশ্চয়কৈ ডিগবৈবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ যে ডিগবৈত যি শোধনাগাৰ আছে সেই শোধনাগাৰ বৰ্ধিতকৰণৰ বাবে এতিয়া এইদৰে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছে। ৰাজ্যবাসীৰ বাবে নিশ্চয়কৈ এক ভাল খবৰ বা এক সুখবৰ। সমান্তৰালকৈ ধূপধৰাৰ পৰা ছয়গাঁৱলৈ আৰু নিউ বঙাইগাঁৱৰ পৰা সৰভোগলৈ দ্বৈত ৰেল লাইনৰো উন্মোচন কৰা হৈছে। আৰু যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমলৈ এই দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে আহিছিল আৰু দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অহা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইদৰে কেইবাটাও বৃহৎ প্ৰকল্পৰ উন্মোচন কৰিছে। সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যবাসীলৈ এই বৃহৎ উপহাৰ আগবঢ়াইছে। নিশ্চয়কৈ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এক ভাল খবৰ বা সুখবৰ যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইদৰে কেইবাটাও বৃহৎ উপহাৰ একেলগে প্ৰদান কৰিছে ৰাজ্যবাসীলৈ। তিনিচুকীয়াবাসী হওক, শিৱসাগৰবাসী হওক বা ডিগবৈবাসী হওক, সকলোৰে বাবে নিশ্চয়কৈ ভাল খবৰ, যিহেতু এটা দুটা নহয় কেইবাটাও বৃহৎ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন কৰা হৈছে। সমান্তৰালকৈ আজিৰ এই দিনটোত দেশৰ সৰ্বপ্ৰথম এনেকুৱা এটা দিন য'ত 5 লাখতকৈ অধিক লোকে একেলগে ঘৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেনেস্থলত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত 5,55,555 গৰাকী লোকে লাভ কৰিছে ঘৰ, আৰু এই প্ৰতিটো ঘৰৰ গৰাকী হৈ পৰিব এতিয়াৰে পৰা মহিলাসকল। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমলৈ আহিয়ে এইদৰে কেইবাটাও বৃহৎ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন কৰি ৰাজ্যবাসীলৈ এটা দুটা নহয় এই 15টাকৈ বৃহৎ উপহাৰ আগবঢ়াইছে। এই সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য আমাৰ সৈতে আছে, তাক শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। काजीरंगा नेशनल पार्क का गोल्डन जुबली वर्ष भी है। मैं असम के लोगों को इसके लिए भी बहुत बधाई देता हूं, और मैं देशवासियों को भी कहूंगा कि गोल्डन जुबली ईयर है काजीरंगा का, आपके लिए भी यहां आना बनता ही है। मैं काजीरंगा से जो यादें लेकर आया हूं, ये यादें जीवन भर मेरे साथ रहने वाली है। साथियों, आज मुझे वीर लसित बोरफुकन की विशाल और भव्य प्रतिमा का अनावरण का भी सौभाग्य मिला। लसित बोरफुकन असम के शौर्य, असम के पराक्रम के प्रतीक है। वर्ष 2022 में हमने दिल्ली में लसित बोरफुकन के 400वीं जन्म जयंती वर्ष के पूरे उत्साह से मनाया था। मैं वीर योद्धा लसित बोरफुकन को फिर एक बार नमन करता हूं। साथियों, विरासत भी विकास भी, ये हमारी डबल इंजन की सरकार का मंत्र रहा है। विरासत के संरक्षण के साथ ही असम के डबल इंजन की सरकार यहां के विकास के लिए भी उतनी ही तेजी से काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और ऊर्जा के क्षेत्र में असम ने अभूतपूर्व तेज गति दिखाई है। एम्स के निर्माण से यहां के लोगों के लिए बहुत सुविधा हो गई है। आज यहां तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज का भी लोकार्पण हुआ। इससे आसपास के कई जिलों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगेगी। असम के पिछले दौर पर, जब मैं पिछले दौरे पर आया था, मैंने गुवाहाटी और करीमगंज में 2 मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी थी। आज शिवसागर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया है। यहीं आपके जोरहाट में एक कैंसर अस्पताल का निर्माण भी हुआ है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास से असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का एक बहुत बड़ा केंद्र यह हमारा आसाम बन जाएगा। साथियों, आज पीएम ऊर्जा गंगा योजना के तहत बनी
बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन को देश को समर्पित किया गया है। ये गैस पाइपलाइन नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड को नेशनल गैस ग्रिड से कनेक्ट करेगी। इससे करीब 30 लाख परिवारों और 600 से ज्यादा सीएनजी स्टेशंस को गैस की सप्लाई होगी। बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के 30 से ज्यादा जिलों के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। साथियों, आज डिगबोई रिफाइनरी और गुवाहाटी रिफाइनरी की क्षमता के विस्तार का भी शुभारंभ हुआ है। दशकों से असम के लोगों की डिमांड थी कि असम की रिफाइनरी की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। यहां आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, लेकिन पहले की सरकार ने यहां के लोगों की इस भावना पर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन बीते 10 वर्ष में भाजपा सरकार ने असम की चारों रिफाइनरीज की क्षमता को बढ़ाने के लिए लगातार काम किया है। अब असम की रिफाइनरीज की कुल क्षमता 2 गुनी हो जाएगी, डबल। और इसमें भी नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता तो 3 गुनी होने जा रही है, 3 गुनी। जब किसी क्षेत्र का विकास का मजबूत इरादा हो तो काम भी मजबूती से और तेज गति से होते हैं। साथियों, आज असम के मेरे 5.5 लाख परिवारों के लिए अपने पक्का मकान का सपना पूरा हुआ है। आप सोचिए, एक राज्य में 5.5 लाख परिवार अपनी पसंद के, अपनी मालिकी के पक्के घर में जा रहे हैं। भाइयों बहनों, जीवन का कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपकी सेवा कर पा रहा हूं। भाइयों बहनों, कांग्रेस की सरकारों के समय, उस समय जहां लोग एक एक घर के लिए तरसते थे, वहीं हमारी सरकार एक एक दिन में, आप देख रहे हैं अकेले आसाम में 5.5 लाख गरीबों को दे रही है। 5.5 लाख घर। और एक घर ऐसे ही 4 दीवारें नहीं है। इन घरों में शौचालय, गैस का कनेक्शन, बिजली, नल से जल, ये सारी सुविधा भी इसके साथ ही जुड़ी हुई है, एक साथ मिली है। असम में अब तक ऐसे 18 लाख परिवारों को पक्का मकान दिया जा चुका है। और मुझे खुशी है कि पीएम आवास योजना के तहत दिए गए ज्यादातर घर महिलाओं के नाम रजिस्टर्ड किए गए हैं। अब घर की मालकिन ये मेरी माताएं बहनें बनी हैं। यानी इन घरों के लाखों महिलाओं को अपने घर की मालकिन बना दिया है। साथियों, हमारा प्रयास है कि असम की हर महिला का जीवन आसान हो। इतना ही नहीं, उसकी बचत भी बढ़े, आर्थिक रूप से उसको बचत हो। अभी कल ही विश्व महिला दिवस पर हमारी सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम में 100 रुपये और घटा दिए। हमारी सरकार आयुष्मान कार्ड के जरिए जो मुफ्त इलाज की सुविधा दे रही है,
उसकी बड़ी लाभार्थी हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं हैं। जल जीवन मिशन के तहत असम में पिछले 5 साल में 50 लाख से ज्यादा नए घरों में पानी का कनेक्शन पहुंचा है। अमृत सरोवर अभियान के तहत, और अभी मुझे उसका कॉफी टेबल बुक रिलीज करने का मौका मिला, अमृत सरोवर अभियान के तहत यहां जो 3000 अमृत सरोवर बने हैं उनका भी बहुत लाभ हो रहा है। भाजपा सरकार देश में 3 करोड़, ये मैं आपके लिए बोल रहा हूं, ये एक बढ़िया बढ़िया टोपी पहन के बैठी है ना बहने, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना, देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का अभियान पर भी काम कर रही है। इस अभियान के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को और सशक्त किया जा रहा है, उन्हें नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस अभियान का लाभ असम की भी लाखों महिलाओं को मिल रहा है। और मुझे मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि असम में जो लखपति दीदी बन गई हैं, वो सारी लखपति दीदी यहां आई हुई है। एक बार जोरदार तालियों से इन लखपति दीदियों का सम्मान कीजिए। ये मोदी की गारंटी है। साथियों, 2014 के बाद असम में कई ऐतिहासिक परिवर्तनों की नींव रखी गई। असम में भूमिहीन 2.5 लाख मूल बागानों में काम करने वाले ऐसे करीब 8 लाख वर्कर्स को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना शुरू किया। बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का मतलब है कि उन वर्कर्स को सरकारी योजनाओं की मदद भी पहुंचने लगी है। जो लोग सरकार के आर्थिक लाभ पाने के पात्र थे, उनके हक का पैसा सीधे बैंक खाते में पहुंचने लगा। हमने बिचौलियों के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए। गरीब को पहली बार लगा है कि उनकी सुनने वाली कोई सरकार है, और वो भाजपा सरकार है। साथियों, विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए नॉर्थ ईस्ट का विकास जरूरी है। कांग्रेस के लंबे शासनकाल में नॉर्थ ईस्ट को दशकों तक सरकार की उपेक्षा सहनी पड़ी है। विकास की कई परियोजनाओं का शिलान्यास करके फोटो खिंचवा ली, लोगों को गुमराह कर दिया और फिर भाग गए, हाथ खींच लिए। लेकिन मोदी पूरे नॉर्थ ईस्ट को अपना परिवार मानता है। इसलिए हमने उन प्रोजेक्ट को भी पूरा करने पर फोकस किया जिन्हें वर्षों से लटकाया जा रहा था, कागज पर लिख करके छोड़ दिया गया था। भाजपा सरकार ने सराय घाट पर दूसरे ब्रिज, ढोला सदिया ब्रिज और बोगी बिल ब्रिज का काम पूरा कर उन्हें देश की सेवा में समर्पित किया। हमारी सरकार के दौरान ही बराक घाटी तक ब्रॉडगेज रेल कनेक्टिविटी का विस्तार हुआ। 2014 के बाद यहां विकास को गति देने वाले कई प्रोजेक्ट शुरू हुए। जोगी धोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू हुआ। ब्रह्मपुत्र नदी पर 2 नए पुल बनाने को मंजूरी मिली। 2014 तक असम में सिर्फ 1 नेशनल वाटरवे था, आज उत्तर पूर्व में 18 नेशनल वाटरवेज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास के नई औद्योगिक संभावनाएं पैदा हुई। हमारी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए उन्नति योजना को नए स्वरूप में इसका और विस्तार करते हुए मंजूरी दी है। सरकार ने असम के जूट किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने इस वर्ष
जूट के लिए एमएसपी प्रति क्विंटल 285 रुपये 285 रुपये बढ़ा दिए। अब जूट किसानों को प्रति क्विंटल 5,335 रुपये मिलेंगे। साथियों, मेरे इन प्रयासों के बीच हमारे विरोधी क्या कर रहे हैं? देश को गुमराह करने वाले क्या कर रहे हैं? मोदी को गाली देने वाली कांग्रेस और उसके दोस्तों ने आजकल कहना शुरू किया है कि मोदी का परिवार नहीं है। उनकी गाली के जवाब में पूरा देश खड़ा हो गया है। पूरा देश कह रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं ये है प्यार, ये है आशीर्वाद। देश का ये प्यार मोदी को इसलिए मिलता है क्योंकि मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों को सिर्फ अपना परिवार ही नहीं माना, बल्कि उनकी दिन रात सेवा भी कर रहा है। आज का ये आयोजन भी इसी का प्रतिबिंब है। मैं एक बार फिर आप सबको इतने बड़ी विशाल संख्या में आने के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद। और इतने बड़ी मात्रा में विकास कार्यों के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। आवाज पूरे नॉर्थ ईस्ट में जानी चाहिए आज। भारत माता की, भारत माता की। ये लखपति दीदी की आवाज तो और तेज होनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।